अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है? बच्चों आवाज़ आ रही है? नहीं? Yes, ma'am. वो क्यों है? अच्छा, आज हम अपने लेक्चर्स कवर करेंगे। लेंथी होगा क्योंकि मैंने आज ख़त्म करवाना है आप लोगों का सिलेबस। सो जस्ट बी पेशेंट एंड स्टे फोकस्ड। कोई इशू हो तो बता दीजिएगा। इट्स नॉट एक्चुअली टफ, लेक्चर्स इजी ही हैं आपके। Okay, ma'am. So today we are going to talk about sterilization and disinfection क्या होती है। Sterilization is the killing or removal of all the microorganisms including bacterial spores। जो spores होते हैं वो एक tough resistant structure बना देते हैं जो कि dormant हो जाता है, reproduction नहीं करता under the adverse condition। अगर adverse temperature हो या nutrient supply ना हो तो bacteria can form the spore और वो डोमेंट रहते हैं फॉर मेनी ईयर्स और उसके बाद दोबारा अगर कंडीशंस ठीक हो जाएं तो वो वापस अपनी लाइव या ग्रोइंग या वेजिटेटिव फॉर्म जिसको हम कहते हैं जिसमें वो कैपेबल है टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस उसमें वापस आ सकते हैं। सो इवन दो स्पोर्स क्योंकि बहुत रेजिस्टेंट होते हैं उसको भी स्टेरिलाइजेशन रिमूव कर सकती है। यूजली कैरिड आउट बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेव पे इट्स इम्पॉर्टेंट कि दैट यू शुड नो कि इस पे आप जो स्टीम दे रहे हैं इट इज़ एट 121 डिग्री सी अंडर अ प्रेशर ऑफ 15 lbs per inch square for 15 minutes. Surgical instruments that can be damaged by moist heat are usually sterilized by exposure to ethylene oxide gas, and most intravenous solutions are sterilized by filtration। फिल्टरेशन भी हम एंड में पढ़ेंगे कि उसमें आप फिल्टर कर देते हैं, कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। उसमें आपका जो बैक्टीरिया होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो फिल्टर आउट हो जाएगा। Disinfection is the killing of many but not all microorganisms. For adequate disinfection, pathogen must be killed, but some organisms and bacterial spores may survive. तो spores के लिए disinfection जो है it's not a good choice. Disinfectants vary in their tissue damaging properties. It can be corrosive. Corrosive जो होता है वो chemically tissues को destroy करता है और even कुछ metals को भी कर सकता है। So it should not be used on the living objects। ये inanimate या non-living objects पे use करना चाहिए। और अगर स्किन सर्फेसेस पे यूज़ करना है लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे तो उस पे आप लेस टॉक्सिक मटेरियल यूज़ करेंगे फॉर डिसइंफेक्शन लाइक एथेनॉल या फिर आयोडीन। Chemicals used to kill microorganisms on the surface of skin and mucous membranes are called as antiseptics। की definition आनी चाहिए। Clinical use of disinfection and sterilization। सो इसमें आपसे पूछा जा सकता है, इस टेबल को पढ़ लीजिएगा। अगर एक सर्जन का हैंड डिसइंफेक्ट करना है प्रायर टू सर्जरी तो आप क्या यूज़ करेंगे? क्लोरहेक्सिडीन से उसकी डिसइंफेक्शन होगी। डिसइंफेक्ट द सर्जिकल साइट प्रायर टू द सर्जरी। इस पे आयोडोफोर जो है वो आयोडीन का एक प्रिपरेशन होती है वो यूज़ करते हैं। सो देयर आर सेवरल डिसइंफेक्टेंट्स या फिर कुछ में हम ऑटोक्लेविंग कर रहे होंगे सो यू जस्ट हैव टू रीड इट कि आप किस में क्या यूज़ करेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल फॉर द रिटन पॉइंट ऑफ व्यू।
So these are the properties of an ideal disinfectant कि वो होना कैसा चाहिए, ये भी जो है वो पूछा जा सकता है आपसे. Resistant, it should be resistant to inactivation, broadly active, pathogens को kill कर सके, not poisonous or otherwise harmful to the host, penetrating to the pathogens, not damaging to the non-living materials, stable होना चाहिए, easy to work with, otherwise not unpleasant. So these are some ideal characteristics. Sterilization is absolute, removes the microbes and spores as well. To achieve sterilization is expensive but sustainable. Many times sterilization की जरूरत नहीं पड़ती है, आप disinfection से ही काम चला सकते हैं. Because sterilization is an expensive procedure as compared to the use of disinfectants. Antiseptics are used on the skin and mucous membrane to kill the microorganism. They are not used on the inanimate objects. Inanimate objects पे organisms को destroy करने के लिए disinfectants use किए जाते हैं. And the disinfectants they are not usually used on the skin or the mucous membrane. इसमें जो है वो हाई लेवल और लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं जो ज़्यादा आपको ज़्यादा इरिटेट ना हो या ज़्यादा टॉक्सिक ना हो. So they were some low level one. Chemical agents. Chemicals vary greatly in their ability to kill the microorganisms. Chemical agents act primarily by one of the three mechanisms: disruption of the lipid containing cell membrane या plasma membrane, प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन कर सकता है या फिर डीएनए की. Disruption of cell membrane देखते हैं. So this is important कि सेल मेम्ब्रेन को कौन डिसरप्ट करे, डीएनए के साथ कौन इंटरफेयर करे. प्रोटीन इसमें एग्जांपल्स हैं तो वो आपको आनी चाहिए इनके मैकेनिज्म के अंदर. Soap and detergent. Soaps are sodium or potassium salts of the fatty acids, which is a natural product, and detergents instead are artificial surfactants. Phenol as a disinfectant. Phenolic disinfectants are effective against the bacteria, स्पेशली जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनके अगेंस्ट, और एनवेलप जो वायरसेस होंगे. नॉन एनवेलप वायरसेस और स्पोर्स के अगेंस्ट फिनोल इज नॉट effective, and these disinfectants maintain their activity in the presence of organic material. Phenolics are not recommended for semi-critical items, ठीक है, जो sensitive items होंगे, delicate होंगे, because of the lack of validated efficacy data for many of the available formulations, and the residual disinfectant on porous material may cause tissue irritation even when thoroughly rinsed. So इसमें irritation के भी chances होते हैं. Just wait for a second. प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो होती है वो आपकी हेलोजेंस करवा सकते हैं. हेलोजेंस हमने पढ़े थे कभी पीरियोडिक टेबल में इन द 7th कॉलम. जो आप एज एन एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं कॉमनली, इसमें आयोडीन और क्लोराइड होती है. Iodine commonly used as an antiseptic against all the microbes, fungi, and viruses. It inhibits the protein synthesis and oxidizes the sulfhydryl groups of the amino acids. और जो क्लोरीन है वो आप ब्लीच के अंदर यूज होता है. 10% ब्लीच में क्लोरीन होगा, and it is used as hypochlorous acid, which is the active form of the disinfectant. Chlorine is applied in the treatment of drinking water, जो आपको treated आता है, जो हम लोग commonly use नहीं करते, different companies से लेते हैं, so that is already treated with the chlorine to kill the microbes. या फिर स्विमिंग पूल वाटर या सेवेज के लिए भी आप क्लोरीन को यूज कर रहे होते हैं.
आयोडीन एंड आयोडोफोर डिसइंफेक्टेंट्स। आयोडोफोर बेसिकली एक प्रिपरेशन होती है एक आयोडीन के साथ एक सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होता है। अब वो सॉल्युबलाइजिंग जो एजेंट है इट कैन बी सरफेक्टेंट या फिर वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स होते हैं जैसे पोविडीन होती है। ठीक है, बेसिकली वाटर सोल्यूशन जो मटेरियल होता है इट रिलीजेस द फ्री आयोडीन जब वो आप उसको सोल्यूशन में यूज कर रहे होते हैं, इसमें से फिर बाद में आयोडीन रिलीज हो जाती है। So these compounds have been incorporated in time release formulation. So time release यही है कि इसमें आयोडीन रिलीज करेगा बाद में। And in the soaps, surgical scrubs, simple iodine tinctures dissolved in alcohol have limited cleaning ability. These compounds are bactericidal, sporicidal, virucidal, and fungicidal, but require a prolonged contact time. Alcohols. Alcohol refers to two water-soluble chemicals. Ethyl alcohol use होती है commonly या फिर isopropyl alcohol. These alcohols are rapidly bactericidal rather than bacteriostatic against the vegetative forms of bacteria. Vegetative form होती है जिसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी एक नॉर्मल फॉर्म होगी। So they are also tuberculosidal and fungicidal and virucidal against the enveloped viruses. लेकिन जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं उसके अगेंस्ट अल्कोहल इफेक्टिव नहीं होती और जो नॉन एनवेलेप्ड वायरसेस है उसके अगेंस्ट इसकी इफेक्टिवनेस बहुत लिमिटेड है। Alcohols are commonly used topical antiseptics. They are also used to disinfect the surface of medical equipment, and they require time to work and they may not penetrate the organic material. Gaining importance in hand washing with alcohol, the use of either the ethyl alcohol or isopropyl alcohol in a 60 to 90% solution has recently gained wide acceptance as the hand antiseptics. They can be used as reasonable substitute for hand washing as long as hands are not visibly soiled। जैसे आपके हैंड सैनिटाइजर होते हैं उसमें अल्कोहल ऐड होती है। हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट ऑब्वियसली इसमें क्लोराइड होता है। सो इसकी जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है एंटी माइक्रोबियल। दे आर अनअफेक्टेड बाय हार्ड वाटर, inexpensive, fast acting and low incidence of serious toxicity, जिसको आप यूजुअली घरों में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Hydrogen peroxide. Peroxides such as hydrogen peroxides are often used as antiseptics to clean wounds, and its activity is greatest against the anaerobic bacteria. High concentration में ये टिश्यू को डैमेज कर सकता है with a prolonged healing time, इसलिए इसको स्किन पे कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। It is used for cleaning surgical sites after the closure, but use sparingly to avoid the penetrating suture line। अगर suture line पे यूज करेंगे हम तो वो wound healing को inhibit करती है। So that is one side effect कि wound healing inhibit कर रही है और हाई कंसंट्रेशन में इवन खुद जो है ये wound cause कर सकती है। फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में यूजुअली हम देखते हैं प्रिजर्वेशन जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड में फॉर्मेलिन जिसको हम कह रहे होते हैं। These are glutaraldehydes. They are very potent disinfectants which can be highly toxic. Use them only as a last resort and then under the trained supervision in a well-ventilated setting and with appropriate personal protective equipment. So this is how toxic it is. It is used as a disinfectant and sterilant both in the liquid and gaseous state, and it is sold and used principally as water based solution। इसको हम प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते, वाटर बेस्ड सोल्यूशन को ही हम फॉर्मेलिन कह रहे होते हैं विच इज एक्चुअली 37% ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बाय वेट, बाकी इसमें वाटर ऐड होता है। The aqueous solution is bactericidal, tuberculosidal and fungicidal, virucidal and sporicidal। सबको जो है वो किल करने की एबिलिटी रखता है, ये भी पूछा जा सकता है।
इथाइलिन ऑक्साइड के एडवांटेजेस क्या है? हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट माइक्रोब्स, हाईली डिफ्यूसिव, compatible with a wide variety of materials in devices and packaging. एसिड्स एंड अल्कलीज को भी आप यूज करते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कलीज किल बाय डीनेचरिंग द प्रोटीन. So denaturing of protein करेगा. Weak acids like benzoic, propionic and citric acid are frequently used as food preservatives क्योंकि ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बैक्टीरिया सेटल नहीं होते, इसकी ग्रोथ को कम करेंगे या इनहिबिट करेंगे. फिर मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जो न्यूक्लिक एसिड की मॉडिफिकेशन है वो होती है डाइज से. The variety of dyes they do not only stain the microorganism की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकते हैं. एक commonly used dye है crystal violet that is used as a skin antiseptic. Its action is based on the binding of positively charged dye molecule to the negatively charged phosphate groups of the nucleic acid. So this is the mechanism कि वो bind किससे कर रहा है and this is important. Malachite green is a triphenyl amine dye like crystal violet. It is a component of Lowenstein Jensen medium जो आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मीडियम यूज करते हैं. उसके अंदर ये डाई भी यूज होता है क्योंकि आपने इसमें स्टेनिंग भी करनी होती है और उसमें फिर वो ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है. The dye inhibits the growth of unwanted organism in the sputum during 6 week incubation period. ये इसकी माइकोबैक्टीरियम टीबी की बात हो रही है क्योंकि इसमें आप स्पूटम कल्चर कर रहे होते हैं. तो इसमें हमने तीनों देख लिए कि जो प्रोटीन डीनेचरेशन है या न्यूक्लिक एसिड को इफेक्ट करता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे वो और उनके मैकेनिज्म क्या है. With examples, physical agents they act either by imparting the energy in the form of heat or radiation or removing the organism through filtration. अब heat, radiation और filtration क्या है? Heat energy can be applied in three ways. Moist heat, boiling या autoclave. Autoclave में आप steam use कर रहे होते हैं. Dry heat या pasteurization. Pasteurization जो है ये आपने कभी पढ़ा होगा बायो में कि ये milk की pasteurization नहीं की जाती है. In general, heat kills by denaturing proteins, लेकिन membrane damage भी कर सकती है या enzymatic degradation और cleavage of the DNA may also be involved. Moist heat kills the microorganism by coagulating their proteins. In general, moist heat is much more effective than dry heat. So ये पूछा जा सकता है कि कौन सी effective है. Boiling में आ जाएगी moist heat के अंदर. So heat to 100 degrees C or more at sea level is boiling. It kills the vegetative forms of bacterial pathogens, almost all the viruses and fungi and their spores within 10 minutes or less. So ये spores को भी include करिए. Endospores जो होते हैं और some viruses endospores यही spores जो within the parent जो bacteria है एक dormant non-reproductive और resistant structure बनेगा. So they are not destroyed this quickly. However, brief boiling will kill most pathogens. So थोड़ा सा आप time देंगे तो वो most of the pathogens को boiling, so it's a good thing. Reliable sterilization with moist heat requires temperatures above that of the boiling water. Autoclaving. Autoclave is important. इसमें क्या होता है कि basically एक chamber है जिसमें hot steam है under pressure, काफी pressure apply किया गया है. Preferred method of sterilization unless material is damaged by heat. अगर वो heat को sustain नहीं कर सकता obviously आप नहीं करेंगे. Or moisture or high pressure. Temperature of steam reaches 121 degree C at 15 pounds per square inch, which is the it's 2 times the atmospheric pressure. Most effective when organism contact steam directly.
or are contained in a small volume of liquid. All organism endospores are killed within 15 minutes, require more time to reach the center of solid or large volume of the liquid. Pasteurization is important कि इसका क्या टेम्परेचर या कितनी देर के लिए करते हैं. So primarily आप मिल्क के लिए यूज करते हैं heating the milk to 62 degree C for 30 minutes followed by rapid cooling. इसको हम जो है 62 पे 30 मिनट्स के लिए करेंगे. फ्लैश पास्चराइजेशन जो है उस पर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टाइम कम कर देंगे. सो दैट इज 72 डिग्री सी फॉर 15 सेकेंड्स. 10 डिग्री आपने रेज कर दिया और 15 सेकेंड्स कम कर दिया. सो आपसे अगर पूछा है व्हाट इज पास्चराइजेशन, तो इसका यही मतलब है कि आपने इसमें टेम्परेचर और टाइम बताना है. This is sufficient to kill the vegetative cells of the milk-borne pathogens. कौन-कौन से pathogens होंगे milk-borne? ये पता होना चाहिए. Mycobacterium bovis बहुत ही common है. Salmonella, Streptococcus, Listeria, Brucella. So Mycobacterium bovis, Salmonella और Brucella ये तीन तो आने चाहिए. But not to sterilize the milk. रेडिएशन के थ्रू भी ऑर्गेनिज्म किलिंग हो सकती है. सो दो टाइप के आप यूज करते हैं, यूवी रेज और एक्स रेज. ऑब्वियसली एक्स रेज हायर एनर्जी की हैं, पेनिट्रेटिंग पावर इनकी ज्यादा एज कम्पेयर टू यूवी रेडिएशन. और ये जो एक्स रेज होती हैं ये फ्री रेडिकल्स बनाती है. प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर. The highly reactive radicals can break the covalent bonds in the DNA, thereby killing the organism. Filtration. It is the preferred method of sterilizing certain solutions जो कि heat sensitive होंगे. आप autoclaving नहीं कर सकते उनकी, या boil नहीं कर सकते. In the past, solutions for intravenous use were autoclaved, but heat-resistant endotoxin in the cell wall of the dead gram-negative bacteria caused fever in the recipient of the solutions. तो आप जिसको वो solution जाता था उसमें क्या होता था, जो हीट को एंडोटॉक्सिन हीट रेजिस्टेंट होता है उससे फिर उसको क्या होगा, फीवर और सारे सिस्टमिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. तो उसके लिए फिल्टरेशन की जा सकती है ताकि आप उसको पायरोजन फ्री कर दें, उसके बाद फिर आप उसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं. The most commonly used filter is composed of nitrocellulose with a pore size of 0.22 micrometer. So filters basically work by physically trapping the particles which are larger than the pore size and by retaining somewhat smaller particles via electrostatic attraction of the particles to the filters. So it's just like a filter जो है वो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं और वो बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं, लेकिन पार्टिकल्स जो होंगे जिसको आपने ट्रैप करना है बेसिकली उससे जो है वो छोटा साइज होता है पोर का, ताकि वो उसको ट्रैप कर सके. उसके बाद फर्दर अगर उसको ऑटोक्लेव वगैरह करना है तो वो किया जा सकता है. So that was about the sterilization. Next, there are two more topics that are very simple about the bacterial growth and the क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है, और हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एक जनरलाइज चीजें देखेंगे. मैम स्लाइड नहीं शो हो रही. Yes, I'm going to share. So, microbial growth staging in the normal growth curve के बैक्टीरिया ग्रो कैसे कर रहा है, and classification of medically important bacteria. बैक्टीरियल ग्रोथ आप कहते हैं किसको में? बेसिकली इट इज एन इंक्रीज इन द बैक्टीरियल नंबर्स. इसमें सेल का साइज नहीं इंक्रीज होता, इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं.
So how do you determine the microbial numbers directly through counting या फिर उनकी metabolic activity को measure किया जा सकता है? Bacterial division कैसे होती है? कैसे number of cells increase होंगे? Binary fission हो सकती है और budding हो सकती है और ये दोनों ही sexual method है. Binary fission is the most common method of reproduction. इसमें basically splitting होगी एक parent cell की into two daughter cells. और जो budding होती है इसमें एक जो मेच्योर ऑर्गेनिज्म है उसमें से एक आउटग्रोथ बनेगी जिसको हम बड कह रहे होते हैं एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन और फिर जब उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा बड का दैट इज इट रीचेज द साइज ऑफ अ पेरेंट सेल तो वो उसे अलग हो जाएगी सेपरेट होकर एक अलग सेल बना देगी. सो बाइनरी फिशन में क्या होगा कि सेल एलोंगेट करेगा और डीएनए की रेप्लिकेशन होगी. ठीक है, अपने साइज से एलोंगेट करेगा, दो डीएनए बन जाएंगी और सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही इन्वेजिनेट करेंगी, स्टार्ट टू इन्वेजिनेट ताकि उनकी डिवीजन हो. फिर उसके बाद क्या होगा कि वो इन्वेजिनेशन कंप्लीट हो जाएंगी और दो वॉल्स बन जाएंगी जो आपको डिवीजन नजर आ रही है. तो फाइनली सेल्स कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द सेंटर और इससे क्या हुआ बाइनरी डिवीजन से एक से जो है वो आपके पास दो सेल्स बन गए या दो बैक्टीरिया बन गए. जनरेशन टाइम क्या होता है? अच्छा, जनरेशन टाइम डबलिंग टाइम को कहते हैं हम. So it is the time required for a cell to divide and its population to double is called as generation time. Sorry, generation time. As you see in the picture on the right side, cell division produces two cells. अगर जो single cell division होंगी, two cell division होगी तो आगे चार बन जाएंगे and so on. चार होंगे तो आगे obviously हर एक 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 बनाएगा तो आठ बन जाएंगे. So it goes on. So doubling time में generation time एक division का हम देखेंगे. बैक्टीरियल जनरेशन टाइम की एग्जांपल है विद द टाइम लाइक ई कोलाई की 20 मिनट्स होती है, माइकोबैक्टीरियम टीबी की 18 आवर्स है और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो लेप्रेसी करवाता है वो 14 डेज. Phases of growth, this is an important thing. इसमें एक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बनती है, ठीक है जी, और इसके चार फेजेस होते हैं. एक लैग फेज होता है, फिर एक लॉग आएगा एक्सपोनेंशियल, फिर स्टेशनरी और फिर डेथ फेज. इसमें चार चीजें हो रही है. लैग फेज सबसे पहले आता है. इसमें क्या होगा कि पीरियड ऑफ लिटिल और नो सेल डिवीजन. अभी सेल डिवीजन नहीं हो रही या बहुत ही लो रेट पे हो रही है और इट कैन लास्ट फॉर 1 hour to several days. सेल्स डोमेंट नहीं है, दे आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस लेकिन बहुत कम लेवल पे हो रहे हैं या अभी वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं. अभी उसमें हो क्या रहा है सेल के अंदर, बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी जिसमें डीएनए और एंजाइम सिंथेसिस होंगे. सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होगा फॉर दी सेल डिवीजन. सो दिस इज लैग फेज. फिर होता है लॉग फेज या लॉगरिथमिक इंक्रीज या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज हम इसको कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये सबसे एक्टिव है और इसमें सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसमें सेल डिवीजन होनी है. मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज एक्टिव, सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसमें एक्टिव होगी. इट इज सेंसिटिव टू एडवर्स कंडीशन. अगर एडवर्स कंडीशन आ जाए इस फेज में तो ऑब्वियसली इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी बैक्टीरिया की. फिर स्टेशनरी फेज आएगा. स्टेशनरी फेज इज बेसिकली द पीरियड ऑफ इक्विलिब्रियम. Metabolic activity of surviving cells slows down, which stabilizes the population. Cause of discontinuity of the exponential growth is not always clear, but possible जो reasons हैं क्या होंगी कि इस पॉइंट पर आके न्यूट्रिएंट लिमिटेशन हो गई. इतने सारे ग्रो कर रहे थे लॉग फेज के अंदर, उन्होंने सारे न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए. ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी लिमिटेड होगी. टॉक्सिक वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, उसकी एक्यूमुलेशन होगी. क्रिटिकल पॉपुलेशन डेंसिटी रीच्ड. फिर आएगा डेथ फेज. इसको हम लॉगरिथमिक डिक्लाइन फेज भी कहते हैं. इट कंटिन्यूज until a small fraction of population is diminished. Some population dies out completely, another retain the surviving cells, while
some of them retain only for a few days. So this is the curve, this is the lag phase. इसमें मिनिमल और नो ग्रोथ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है इसमें। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज कर्व कितनी ऊपर चली जा रही है, ठीक है, आपसे बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। सो क्योंकि इसमें क्या हो रही है, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। फिर स्टेशनरी फेज इक्विलिब्रियम में आ गए, इसकी कॉजेज भी पूछी जा सकती है। और फिर डेथ फेज में, डेथ फेज की तरफ जाते हुए कुछ वायबल रहेंगे और कुछ जो है वो दे विल डाई आउट। So this is the same thing. ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर ग्रोथ बेसिकली हम कहते हैं वो बैक्टीरियल पैथोजन जो सिर्फ लिविंग सेल्स में ग्रो करेंगे। अगर आप उन्हें बाहर नॉन लिविंग के पास ले जाएं तो वो ग्रो नहीं कर सकते, उनको हम कहेंगे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। एग्जांपल है इसके क्लेमिडिया और रिकेट्सिया। Why obligate parasites only grow within the living cell? बेसिकली उनको होस्ट चाहिए कि वो उनको एटीपी दे और वो फिर अपना काम करें, क्योंकि उनके पास अपनी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एटीपी बना सके। एरोबिक एंड anaerobic ग्रोथ। सो इसमें क्या है कि जी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, जो एरोबिक होगी, और ऑक्सीजन क्या होती है, इट इज एक्टिंग एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर in the final steps of energy production catalyzed by flavoproteins and cytochromes. ऑक्सीजन ने दो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फ्री रेडिकल सुपर ऑक्साइड। बैक्टीरिया क्या करता है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है बाय टू एंजाइम, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटालेज फॉर H2O2। सो ये हमने पहले भी देखे थे स्लाइड्स में। ऑब्लिगेट होते हैं, फैकल्टेटिव होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब ये है कि उनको एरोब्स हैं, सो ऑब्लिगेट दे रिक्वायर द ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, उस पर डिपेंडेंट है। एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फैकल्टेटिव anaerobes क्या होंगे, they utilize the oxygen if present to generate energy by respiration, but they can use the fermentation pathway to synthesize ATP in the absence of the sufficient oxygen. So it is a two-way thing. Oxygen है तब भी grow कर लेगा, oxygen नहीं है तब भी grow कर लेगा. So they are facultative anaerobes. Example है E. coli. Obligate anaerobes जो होते हैं, they cannot grow in the presence of oxygen because they lack either the superoxide dismutase or catalase, जो कि टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीजन को जाके यू नो कैटेलाइज कर रहे थे, इसका एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होगा, सो इसमें ग्रो नहीं करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है क्लस्ट्रीडियम टेटनाई जो टेटनस में होती है, that is the cause of the tetanus after an injury. Fermentation of sugars such as glucose result in the production of ATP and pyruvic acid or lactic acid. एंड जब पायरुविक और लैक्टिक एसिड है, तो एसिड क्या करता है, पीएच को कम कर देता है, और जब पीएच कम होती है तो जो इंडिकेटर डाइज होते हैं, पीएच कम होने से या ज्यादा होने से उसमें कलर चेंजेस आते हैं, तो उससे पता चलेगा कि फर्मेंटेशन हो गया है। सो दैट इज बेसिकली फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जो है, इट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर का क्या रोल है, तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि उसमें एसिड बनेगा, पायरुविक और लैक्टिक एसिड, और डाई इंडिकेटर होगा, उस पर कलर चेंज आएगा ड्यू टू डिक्रीज इन द पीएच, और आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो उसकी एक्टिविटी चल रही है। सो क्लासिफिकेशन हम बैक्टीरिया की कह रहे होते हैं, इसमें बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं। सेल वॉल की नेचर के अगर हम क्लासिफाई करें कि रिजिड है या फ्लेक्सिबल है या प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसमें हमारे पास आते हैं फ्री लिविंग एंड नॉन फ्री लिविंग बैक्टीरिया। जो फ्री लिविंग होते हैं उसमें रिजिड और थिक सेल वॉल होती है,
ठीक है, and they're capable of growing on the laboratory medium in the absence of human or other animal cells. और नॉन लिविंग सेल्स के बगैर वो मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं। जो नॉन फ्री लिविंग होते हैं वो बेसिकली ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जो हमने अभी पढ़ा, नाम से पता चल रहा है कि वो किसी लिविंग सेल के अंदर, लिविंग होस्ट के अंदर ही ग्रो करेंगे, नॉट ऑन दी आर्टिफिशियल मीडिया। जो फ्री लिविंग हमने पढ़ा, जो लेबोरेटरी मीडियम के ऊपर ग्रो कर रहा था, उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। बेसिकली हम कह रहे होते हैं बैक्टीरिया, जिसमें कोकाई और रॉड्स होते हैं। कोकाई और रॉड्स हमने पढ़े थे अभी, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें भी आ जाएगा। With the different oxygen requirements and spore forming abilities, bacteria with the flexible thin walls, basically spirochetes में होती है, and those without cell walls, और वो कौन से हैं जी? mycoplasma है, they form separate units. This is a diagram of the classification. Examples इसमें आनी चाहिए, lacking the cell wall mycoplasma है आपके पास, या यूरिया प्लाज्मा, mycoplasma important है। रिजिड सेल वॉल जो है वो सिंपल यूनिसेलुलर और फिलामेंट्स की फॉर्म में हो सकता है, और या सिंगल सेल। जो सिंगल सेल होता है उसमें ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, ठीक है, इसकी एक दो एग्जांपल लाइक क्लेमिडिया या रिकेट्सिया आ गया। और फ्री लिविंग का मतलब है लेबोरेटरी मीडियम के ऊपर भी ग्रो करता है, उसमें आपको पता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आ जाते हैं, और इसमें फिर आगे एग्जांपल्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। फिलामेंटस के अंदर एक्टिनोमाइसिस है और माइकोबैक्टीरियम, दो एग्जांपल्स आ सकती हैं। और जो फ्लेक्सिबल सेल वॉल होती है जिनकी, उसमें स्पायरोकीट्स आते हैं, जिसपे ट्रेपोनिमा पैलिडम और या फिर लेप्टोस्पाइरा। बाकी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में पूरी क्लासिफिकेशन है, हमने एक दफा पहले भी पढ़ी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। So that was all about the growth and classification of the bacteria. I'm going to share the next slide, which is the last one. इसमें हम बेसिकली देखेंगे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के बारे में। जो सेल होता है बेसिकली वो होता है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। इसका डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। जो आपका बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है, और यूजुअली जो एनिमल्स हैं, बाकी फंजाई, प्लांट्स, प्रोटोजोआ, एल्गी वगैरह, ये यूकैरियोटिक होते हैं। डिफरेंट साइज का है, प्रोकैरियोटिक का कम होगा एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा और न्यूक्लियोलस नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। दिस इज वन मेन डिफरेंस। और जो सेल वॉल है, जो यूकैरियोटिक है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट। और बाकी दो तीन फीचर्स हैं कि जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसमें स्टिरोल्स जो है वो यूकैरियोटिक में होते हैं, और मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलिस भी यूकैरियोटिक में होंगे, प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे। और राइबोसोम्स बैक्टीरिया के या प्रोकैरियोटिक के 70s होते हैं, और यूकैरियोटिक या जो ह्यूमन सेल होता है उसमें 80s आता है। सो लेट्स सी स्ट्रक्चर में जो शेप एंड साइजेस में कोकाई, बेसिलाई एंड स्पायरोकीट्स होते हैं, और कुछ वेरिएबल हो सकते हैं, इनमें से कोई भी शेप ले सकते हैं, प्लियोमॉर्फिक। सो अगर पेयर्स में हो जो कोकाई होंगे तो डिप्लोकोकाई, चेन्स को हम कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लस्टर्स में हम उसको स्टाफ का नाम देते हैं, सो दैट इज स्टेफिलोकोकाई। दिस इज a diagram once again and it is important, आपसे बनाने के लिए भी कहा जा सकता है, ये वाली डायग्राम देख लीजिएगा। इसके आउटर साइड पे कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर फिर आ जाती है आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल, एंड देन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज आर द फिम्ब्राe। फिम्ब्राe जो होते हैं वो बेसिकली पिलाई होते हैं, पिलस के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, जो हर बैक्टीरिया में नहीं होंगे।
So this one is a cytoplasm that is containing the ribosome and the nuclear area containing the DNA, और एक जो independent circular DNA होता है वो होता है plasmid. Mesosomes और inclusion bodies हम आगे देखते हैं इसके बारे में क्या होती हैं. और this one is the flagella that is for the motility. So अगर आपसे डायग्राम कहा जाए तो ये वाली डायग्राम बना के इसको लेबल कर दें. एनाटॉमी क्या है जी. आउटर लेयर के दो कंपोनेंट्स है. रिजिड सेल वॉल होती है और फिर नीचे क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. फिर साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम, मेसोसोम और जेनेटिक मटेरियल है. और एडिशनल जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उसमें कैप्सूल, क्योंकि वो एडिशनल वो होंगे जो जरूरी नहीं है सब बैक्टीरिया में हो. सो कैप्सूल, फ्लैजुला, फिम्ब्रे और पिलाई या स्पोर फॉर्मेशन. तो वन बाय वन देखते हैं जी. सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है जो साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है. और रिजिड सेल वॉल होती है 10 से 25 नैनोमीटर थिक होती है और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है. कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल में एंटीजेंस होते हैं दैट आर इम्पोर्टेंट इन विरुलेंस एंड इम्यूनिटी. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है इसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, which is responsible for causing the fever, जो एक systemic effect है, और necrosis of the cells in the host. Chemical nature of the cell wall helps to divide the bacteria into two broad groups, gram positive and negative. आप basically cell wall की वजह से भी आप उसको impart कर रहे होते हैं gram positive है या negative है. Several antibiotics may interfere with the cell wall synthesis, for example, penicillin and cephalosporins. ये हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं. तो कौन सी एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर पे इफेक्ट कर सकती है. सो जो सेल वॉल होगी वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस. और इसकी जो स्ट्रेंथ और शेप है वो पेप्टिडोग्लाइकन की वजह से आ रही होती है. ठीक है. तो ग्राम स्टेनिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है. ग्राम स्टेनिंग जो है उसमें आप जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो पर्पल स्टेनिंग ले लेते हैं और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो पिंक या रेड कलर्स का स्टेन लेते हैं. ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस हमने पहले भी देखा था और ये टेबल जो है ये एक टेबल आपको आना चाहिए. इस टेबल को याद कर लीजिएगा. जो ग्राम पॉजिटिव होंगे इसमें एक लेयर होती है, ग्राम नेगेटिव में टू होती है, लेकिन थिकनेस के लिहाज से ग्राम पॉजिटिव इज मोर थिक क्योंकि इसकी जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है वो थिक होती है. आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव और केमिकल कॉम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट है. जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है, टिकॉइक और लाइपोटिकॉइक एसिड्स होते हैं. और जो ग्राम नेगेटिव होता है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन के साथ लाइपोपॉलीसेकेराइड एंड लाइपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. सो पोरिन प्रोटीन ज्यादातर ग्राम नेगेटिव में होंगे और लिपिड कंटेंट जी ग्राम नेगेटिव का ज्यादा होता है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन इज मोर इन द ग्राम पॉजिटिव, इसकी वजह से ये ज्यादा थिक होगा. एंड रेजिस्टेंस टू मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा ग्राम नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है. सो peptidoglycan is a complex interwoven network composed of single covalently linked macromolecule found only in the bacterial cell walls that provides the rigid support and it maintains the shape. So this is the gram positive की picture show की हुई है. So this is the cell wall और cell wall के अंदर ये peptidoglycans है. ठीक है. So interlinked और इसके अंदर this is the lipotecoic acid and the smaller one is the teichoic acid. फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान की जो स्पेस होती है उसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, दैट इज अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो पेप्टिडोग्लाइकन की प्राइमरीली जो है वो ग्राम पॉजिटिव की
सेल वॉल बनी हुई होगी और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ टिकॉइक एसिड्स भी होते हैं और साथ में लिपोटिकॉइक एसिड्स भी होंगे। टिकॉइक एसिड्स जो होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन दी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. So again, it's a gram-positive cell wall. This peptidoglycan show here with teichoic and lipoteichoic acids and cytoplasmic membrane. ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल्स है उसके अंदर भी पेप्टिडोग्लाइकन होती है जो कि 5 to 10% ऑफ द वॉल वेट बनाती है, बट ये थिन लेयर होती है. इकोलाई इसके अंदर ये 2 नैनोमीटर तक थिक होती है एंड कंटेन्स ओनली 1 or 2 layers of the peptidoglycan. The most abundant membrane protein is bronze lipoprotein, a small lipoprotein covalently joined to the underlying peptidoglycan and embedded in the outer membrane by its hydrophobic end. So इसमें मेन डिफरेंस वही बातें रिपीट हो रही हैं इसके अंदर खत्म हो गई हैं. This is the gram negative cell wall. इसमें देखिए जी ये पेप्टिडोग्लाइकन है. पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर लाइपोप्रोटीन्स जो है वो है और साथ में इसमें पोरेंस है. और इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और उस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो लाइपोपॉलीसेक्राइड्स पड़े हुए होते हैं. Mechanism of gram staining, that is important. Let's see इसके स्टेप बाय स्टेप देख लें कि सॉरी. स्टेप 1 है जी आपने डाई लेना है क्रिस्टल वॉयलेट. ठीक है, आपने एक स्पेसिमेन स्मेयर लिया, स्लाइड के ऊपर स्मेयर बनाते हैं आप, फिर आप स्टेन ऐड करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट. क्रिस्टल वॉयलेट से क्या होगा कि इट स्टेन्स द सेल पर्पल और ब्लू. ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पर्पल या ब्लू कलर ले लेंगे. फिर आपने लेना है आयोडीन. आयोडीन मॉर्डन मेक्स द डाई लेस soluble so it adheres to the cell walls. मॉर्डन हम कहते हैं जो डाई को फिक्स कर रहा होता है. तो उसका काम इसमें मेंशन्ड है कि वो डाई को लेस soluble बनाएगा ताकि वो सेल वॉल से एडहेयर कर जाए. इसमें क्या होगा, सेल पर्पल या ब्लू ही रहेगा. फिर आप इस पे ऐड करेंगे नंबर 3 पे अल्कोहल. अल्कोहल क्या करती है, एज अ डीकलराइजर एक्ट करती है और इसमें ये होता है कि ग्राम पॉजिटिव पर्पल और ब्लू ही रहेगा और जो ग्राम नेगेटिव होगा वो कलरलेस हो जाएगा. उसके बाद जो है अब एक आप काउंटर स्टेन ऐड करते हैं सेफ्रेनिन जिसको हम कहते हैं. ये जो होता है डाई ये ग्राम नेगेटिव को सेल्स के साथ एडहेयर करता है. सो ग्राम पॉजिटिव पर्पल और ब्लू ही रहेंगे जो स्टार्ट में थे और ग्राम नेगेटिव पहले कलरलेस हो गए थे और अब वो पिंक या रेड अपीयर हो जाएंगे. सो दिस इज द ग्राम स्टेनिंग जो पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफरेंशिएट कराता है. इसके स्टेप्स आपको आने चाहिए विद द कलर चेंजेस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बेसिकली नेगेटिव में ही है, पॉजिटिव तो सेम ही रहता है. So first you fix the organism onto the slide and then you put on the crystal violet color where the which imparts the purple or blue color to the gram positive and negative. Then you fix the dye with iodine and then decolorize with alcohol, which actually decolorizes the gram negative and gram positive remains the same in the color. And end पे जी आपने counter stain add किया which is saffronin. इसने ग्राम नेगेटिव को पिंक टू रेड कलर इम्पार्ट किया and the gram positive remains the same. So this is the color scheme to memorize. साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होता है ये एक थिन लेयर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहेंगे. It is a thin layer 5 to 10 nanometer that separates the cell wall from the cytoplasm, which is acting as a semi-permeable membrane, controls the inflow and outflow of the metabolites. So it is composed of the lipoproteins with a small amount of the carbohydrates. साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम क्या करते हैं आपको पता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं. मीसोसोम्स हमने देखे थे. मीसोसोम आर मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर्स formed as the invaginations of plasma membrane. इनका काम क्या है? These are the principal sites of respiratory enzymes. Intracytoplasmic inclusion bodies पड़ी होती हैं. They are the reserve of energy and phosphate for cell metabolism. For example, metachromatic granule and diphtheria bacilli. So mesosome क्या है?
इसकी सिग्निफिकेंस और इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली क्या कर रही हैं ये याद करनी। फिर आ जाता है न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और न्यूक्लियोलस नहीं है। इसका न्यूक्लियस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इट्स जीनोम, जिसमें एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। एडिशनल ऑर्गेनेलिज में प्लाज्मिड आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक एलिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ द डीएनए, और ये जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है इनटू द डॉटर सेल्स and it confers certain properties like drug resistant। जब एक बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ जाएगी तो आगे उसको डॉटर सेल में ट्रांसफर करेगा प्लाज्मिड। ये हम पढ़ चुके हैं ड्रग रेजिस्टेंस में, या टॉक्सिसिटी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड का ये रोल इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि प्लाज्मिड क्या है और इसका रोल क्या है। फिर है कैप्सूल। कैप्सूल भी जरूरी नहीं है सब में प्रेजेंट, और एडिशनल ऑर्गेनेलिज वही होते हैं जो कि जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया में। So capsule जो है it is a viscous layer secreted around the cell wall, और ये बनी किसकी है जी? ये पॉलीसेक्राइड या पॉलीपेप्टाइड की होती है। So कार्बोहाइड्रेट मोइटी है इसके अंदर या फिर इसमें प्रोटीन मोइटी है। Sharply defined structure है, एंटीजेनिक इन द नेचर। सो कैप्सूल क्या कर रहा है? एज एन एंटीजन एक्ट कर सकता है एंड इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया। और इसकी स्टेनिंग जो है वो होती है इंडिया इंक से। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया इंक जो स्टेनिंग है वो आपको क्या करेगा कि इसको स्टेन कर रहा है कैप्सूल ऑफ द बैक्टीरिया को। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। फ्लैजुला जो है दैट इज अ लॉन्ग फिलामेंटस सरफेस अपेंडेज है एंड लोकोमोशन कराएगा बैक्टीरिया की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स दैट कैन आल्सो बी एन एमसीक्यू। पोलर या मोनोट्राइकस का मतलब ये होता है कि सिंगल फ्लैजिलम है एट वन पोल। लोफोट्राइकस का मतलब है जी टफ्ट ऑफ फ्लैजुला एट वन पोल। एम्फीट्राइकस फ्लैजुला सिंगल फ्लैजुला प्रेजेंट है एट बोथ एंड्स। पेरीट्राइकस फ्लैजुला ऑल ओवर होगा, और एम्फीलोफोट्राइकस इज द टफ्ट ऑफ फ्लैजुला एट। You just should know the meaning of these terms. Fimbriae और पिलाई जो है वो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर या अपेंडेजेस होती हैं on the surface of many gram negative पे, and they 10 to 20 micron meter long, और ये एक्ट करी है एज एन ऑर्गन ऑफ एडिशन मीटिंग प्रोसेस वगैरह में। स्पोर्स, यस दिस इज इम्पोर्टेंट कि स्पोर्स क्या होते हैं? हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्टेजिंग फॉर्म ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरनमेंट, जब डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो जाती है। अगर ये इनसाइड द पेरेंट सेल है तो आप उसको एंडोस्पोर भी कह देते हैं। Very resistant to heat, radiation, and drying, and can remain dormant for hundreds of years. Formed by bacteria like Clostridia and Bacillus, example आपको आनी चाहिए। So this is the structure of a pore। इसमें एक outer membrane है, coating है outer membrane। फिर आप इंसान करें तो cortex है। उसके बाद एक germ cell wall है in the black, and inner to it is an inner membrane, और एक central core होता है इसका। So endospores often survive boiling for an hour or more. Therefore, autoclaves must be used to sterilize many materials. स्टेरिलाइजेशन में हमने पढ़ा है जी कि एंडोस्पोर्स जो है वो रिमूव हो सकते हैं, विच इज ऑटोक्लेव। डिसइंफेक्टेंट नहीं करेंगे रिमूव। In the environment, endospores aid in survival when moisture या nutrients are scarce। तो उसके बाद जब वापस आ जाएगा एनवायरनमेंट मिल जाएगा उसको, तो उसके बाद क्या होगा? ये स्टॉप करें पीछे जो भी है, म्यूट करें अपने आप को। सो एंडोस्पोर एड इन द सर्वाइवल एंड मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स का, और जब वापस न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो फिर वो दोबारा वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए, so that's the end of your pathology lectures। अब कोई सवाल है तो पूछ लो।
अच्छा, कुछ बच्चे जो है वो रह गए थे, उनको मैंने लिंक भेज दिया था। अभी इसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस आप लोगों की हो जाएगी। लेक्चर्स हैव बीन फिनिश्ड। अब आप लोग जो हैं बस अपनी फाइनल्स की तैयारी करेंगे। अगर कोई लेक्चर रिलेटेड कोई भी बात हो, आप लोग यू कैन फ्रीली मैम जो कॉन्टेक्ट। हम लोगों ने सेशनल वाइवा में 9 लेक्चर्स दिए हैं वो अब फाइनल के वाइवा में इंक्लूड तो नहीं है ना? दैट्स नॉट कंफर्म बट आई विल मेक इट कंफर्म सून। मैम इतना ज्यादा सिलेबस है, काइंडली आप वो ना बैठ कीजिएगा, 30 लेक्चर्स हैं ऑलरेडी। जी बच्चे, मुझे पता है, मैंने नहीं पढ़ाए हैं। चलिए, ये आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्दी। I'll discuss it with sir and HOD and then I'll let you know. मैम मैंने आपको मेल की थी ना कि मैंने सऊदीया जाना था, उस रिगार्डिंग मैंने आपसे मिलना था। अच्छा, आयशा तो इम्तियाज आप थी? जी मैम। जी मैम, मैंने ना जो एसएचएस के डायरेक्टर है ना सर नवीद अफजल, उनसे बात की थी, और जो हमारी एचओडी है ना डॉक्टर उस्मा, तो ना डॉक्टर उस्मा ने कहा था अगर आपको डायरेक्टर अलाउ करते हैं ना तो फिर आपने किसी टीचर से बात नहीं करनी है। तो आपने वो बात ना, कर ली है? जी मैंने बात कर ली थी, मैंने एप्लीकेशन भी दे दिया और डॉक्यूमेंट्स भी अपने ना मैंने वीजा ऑफिस से जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आएंगे ना उनको दे दूंगी, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन मुझे साइन करके दे दिया है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाएंगे ना तो वो मैं हर टीचर को ना उनकी एक एक मेल कर दूंगी, जिस मतलब पीडीएफ पे अटैच करके वो स्कैन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स, तो फिर मैं आप लोगों को मेल कर दूंगी। आयशा, आप मुझे ना एक दफ़ा मेल वही जो आपने भेजी थी ना, मेरे माइंड जी में मैम। था, लेकिन मुझे अब आपकी मेल नहीं मिल रही थी। ठीक है, वो आप ना मुझे एक दफ़ा अभी फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, ठीक है मैम। ताकि फिर मैं उसको देख लूँ कि उसका एग्जाम का कैसा है। ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम। ओके, सो जिन बच्चों का वाइवा है वो दूसरा लिंक ज्वाइन कर लें। अभी 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। मैम फाइनल वाइवा कब होगा? अच्छे, फैब में जो आपको डेट आई है। शायद टेंटेटिव डेट शीट चली गई होगी। 4 फेब था उसमें। प्रोबेबली वही डेट है। पैथो की तो नहीं चेंज होगी, होपफुली। अभी ये श्योर नहीं है ना कि सिर्फ रिटर्न होना है या रिटर्न वाइवा दोनों होना है। इट्स नॉट श्योर, मे बी सिर्फ रिटर्न हो जाए और मे बी दोनों हो जाए। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ। जब हो जाएगा तो वो इन्फॉर्म कर देंगे आपको ऑब्वियसली। चलें बच्चों, गुड लक फॉर फाइनल्स। कोई भी क्वेरी हो यू कैन मेल मी। ठीक है, आपको जवाब आ जाएगा। और अच्छे से पढ़ें एंड गुड लक। ठीक है, मैम अभी ज्वाइन करना है कि 11 बजे? ओके मैम। अभी अभी बच्चे ज्वाइन ओके। कर लें। आ रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।